हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इन्वायरमेंट मास्टर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है इंजीनियर ऋषभ सिंह। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट फॉर गेट 2021 प्रिपरेशन, in which we are discussing about the water and wastewater engineering. In a water and wastewater engineering, we have discussed about the water demands, its sources and conveyance in a previous lectures. Right now we are discussing about the water quality parameters, in which we have already discussed about the physical water quality parameters, and right now we are discussing about the chemical water quality parameters. In the chemical water quality parameters, we have also discussed about the total dissolved solids and alkalinity of a water. Right now, in a subsequent lectures, we will discuss about the nitrogen content, phosphorus content, fluorides and metals. But in this lecture, we will discuss about the hardness, pH and a chloride content. Actually, in a water and wastewater engineering subject, out of which in a water engineering, we have some major portions like quality parameters of water and a treatment of water. Out of the quality parameters of water, the major questions arises in a GATE exam is from basically 2 points. First one is alkalinity of water, and second most concept for the hardness of water. Although the 1 marks questions or 2 marks questions also asked from the chloride content and a nitrogen content and a fluorides, but basically the conceptual questions can be framed from the alkalinity of water and a hardness of water, or the combination of both of them. So that is why it is very advantageous to discuss about the alkalinity and hardness simultaneously, so and make the relationship between how the alkalinity and hardness be related. So that is why we have to discuss about these things. So अब हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं. So at first we have to discuss about the pH of water. Actually, the pH of water is very important thing, because the alkalinity of water and the hardness of water and some other treatments is also depends upon the pH content. Apart from that, during the chlorination or disinfection process, the quantity of chlorine required or the effectiveness of chlorine will be depends upon the pH of water. And also the pH of water is dependent upon the relative species of alkalinity. Like at some pH, like if the pH is 10, then the OH minus content, then the concentration of OH minus will be nearly 5 milligram per liter at pH is equals to 10. So, and if the pH drops down, like if that will be a nearly in an acidic range, if pH drops down, then concentration of OH minus is also drops down. So that is why it is very advantageous to discuss about the pH in a water. So what do you understand by the pH of water? Basically, pH is a negative logarithm of H plus ions. Like pH is equals to the minus negative logarithm of H plus ions, where H plus is a concentration of H plus ions in a mole per liter. So the measurement of pH, जो pH हो गया, then the question arises how we have to measure the pH. So pH of water that can be measured using the potentiometer or the pH and the pH meter. So in which the measures the potential exerted by H plus. So पोटेंशियल H प्लस आयंस की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको मेजर करने के लिए जो पोटेंशियोमीटर का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है. तो उससे जो आउट ऑफ फ्रॉम दैट इफ द pH इज केम हियर, so that is called the pH of water or the solution.
So how it is reacted or how it can be find out, like there is a bubble, ठीक है, out of that there will be a outer casing, इस तरीके से कुछ एक आउटर केसिंग रहता है। सो इसमें जो है मतलब इनर साइड में कुछ एजेंट फिल रहता है लाइक द AgCl वगैरह, एक आउटर साइड्स में फिल रहता है। सो परमिएबिलिटी मतलब ये जो पोरस रहता है फॉर H+ आयंस, H+ आयंस के लिए ये ग्लास जो है दैट इज पोरस। सो हाउ दिस कैन बी रिएक्टेड, when we put the sample, put the pH meter in a acidic water or the acidic thing, acids में जब put करेंगे तो आउटर साइड से यानी कि इनर साइड का pH कम रहेगा, आउटर साइड का pH ज़्यादा रहेगा, और वी कैन टॉक अबाउट कि इनर साइड में H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी एज कंपेयर टू आउटर साइड। सो आउटर साइड से इनर साइड्स में H+ आयंस इंटर करने लगेंगे। जब H+ आयन इंटर करेंगे तो इसमें एक पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल जनरेट होगा, जब पोटेंशियल हाई होगा तो उससे एक pH की वैल्यू हमको एसिडिक मीडियम में पता चल जाएगी। सेकेंड मोस्ट थिंग, इफ वी पुट द pH मीटर इन अ बेसिक सोल्यूशन, जब हम लोग बेसिक में इसको पुट करेंगे तो इनर साइड में H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी विल बी हायर। जब H+ की कॉन्सेंट्रेशन हायर रहेगी, ठीक है, तो उसको जब हम लोग इफ वी पुट दैट, तो इनर साइड से आउटर साइड की तरफ H+ आयंस बाहर निकलने लगेंगे, बिकॉज दिस ग्लास जो है ये पोरस है ओनली फॉर द H+ आयंस के लिए। तो यहाँ से H+ आयंस बाहर की तरफ मूव करने लगेंगे, इनर साइड में H+ आयंस कम हो जाएंगे, दैट create the potential difference between that, so that can be measured by the potentiometer or the pH meter. Then relatively this is actually related with the transducer, किसी एक transducer से connected रहेगा, which can be measured for the pH of water. So one more thing we have to discuss about that the pH का range किस तरीके से रहता है, like if we'll talk about the pH range, किस तरीके से pH को हम लोग measure करते हैं, like कि अगर एक लाइन है, like if there will be a line, then at center पे अगर 7 है pH, here is pH is equals to 14, so this is called the neutral pH and this is called the acidic range, or this is the basic range. Okay, so अगर हम लोग इस रेंज में 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं, then the basicity or alkalinity increases. If we go at the lower region, then the acidity will increases. Then we can talk about that कि अगर if there will be a 0 पर अगर कोई solution है, then solution अगर जो 1 पर है, there will be a 1, then there will be a 2, then we can say that the solution having pH 1 is more basic than the solution having pH 0, or we can talk about that the solution 1 is more acidic than the solution B or solution 2. Okay, so on a pH scale, जब pH scale पे left to right 0 से 14 की तरफ हम लोग अगर मूव करते हैं, then the alkalinity or basicity of the solution will increases. Consequently, if we will go from 14 to 0, then the acidity of the sample will increases. That is why being the pH of oceans, pH जो oceans का pH है, which is nearly slightly in a alkaline range like the nearly 7.7 7.6, but right now it is still in a alkaline range, but its pH is reducing. like कि अगर हमारा एसिड्स अगर मतलब जो C का pH अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 था, ओके, and right now the pH of C is reduced to 7.5. okay,
It is although in alkaline range, this is not in a acidic range, but the pH of the solution is reduced to the acidic. यानी कि 8 था, but right now it is beyond, it is drops down and goes to the 7. So we can say that the pH of the sea water is reducing. That is why this is called the acidification of lakes या acidification of oceans या ocean acidifications. यह एक environmental problem है. So इतना हम लोगों ने समझ लिया, अंडरस्टूड है. देन प्रॉब्लम क्या है हमारा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीएच या एसिडिटी. तो जो एसिडिक वाटर है वो पाइप्स में कोरोजन करता है. देयर विल बी अ कोरोजन इन एसिडिक वाटर. एंड एल्कलाइन वाटर जो है ये इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप करता है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the acidification and incrustation of water? So let us understand that what is the acidification and what is the incrustation of water. So basically to understand that we have to discuss about one more thing. Like there will be a pipe, like ये pipe है having the diameter d. If there will be a pipe having the diameter d, then if there will be a, इसकी कुछ हम लोग अगर थिकनेस भी मान लेते हैं, like if there will be a thickness t of the outer section, then if there will be a incrustation of pipe, so if there is a diameter, so if there will be a incrustation of pipe, then if there will be a incrustation of pipe, then in this case अगर देखिए, अगर इसमें इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप हो जाएगा तो इस जगह पर हमारा ये सेटल होने लगेगा. तो अगर यहाँ पे सेटल होगा सम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट, लाइक द प्रेसिपिटेट जो होगा, लाइक अगर कैल्शियम कार्बोनेट का अगर प्रेसिपिटेट है CaCO3 का अगर प्रेसिपिटेट हो रहा है, सो क्या होगा, जो इफेक्टिव डायमीटर बचेगा D इज एक्चुअली लेस देन द डायमीटर. अब क्या होगा, जब डायमीटर रिड्यूस हो गया, ठीक है, देन Q इज इक्वल टू A इंटू V. सो अगर हमको सेम डिस्चार्ज फ्लो कराना है एंड द एरिया ऑफ फ्लो इज रिड्यूस्ड, देन द वेलोसिटी विल इंक्रीजेज. जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीज कर जाएगा, देन इन दिस केस द HL, द लॉसेस इज इक्वल टू FL Q स्क्वायर. ओके सॉरी, देन अगर लॉसेस रह जाएगा, देन हेड लॉस विल बी FL V स्क्वायर ओवर 2G एंड D. सो इस केस में FL V स्क्वायर ओवर 2GD हेड लॉस का इक्वेशन है. तो जब वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी उसके रिस्पेक्ट में, चूंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है यहाँ पे, तो डिस्चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है एंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देन हेड लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ द इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप्स में. ओके, इसके अगेंस्ट में इफ देयर विल बी अ डायमीटर D, अगर यहाँ पे डायमीटर D है, सेम टू सेम डायमीटर D है, और इस लोकेशन पर इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप ना हो करके, इस लोकेशन पे अगर इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप ना हो करके, लाइक देयर विल बी अ डायमीटर D अगर जो यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पे डायमीटर हमारा D है ऑलरेडी,
डायमीटर डी है और यहाँ पे इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप नहीं हो रहा है बल्कि कोरोजन ऑफ पाइप हो रहा है। तो जब कोरोजन ऑफ पाइप होगा तो यहाँ से मतलब डायमीटर तो नहीं बढ़ेगा, मे बी डायमीटर बढ़े ना, लेकिन इस जोन पर इस पाइप्स में अंदर कोरोजन होने लगेगा, यानी कि यहाँ का डायमीटर जो है होने लगेगा, या सरफेस रफनेस जो है या स्पेसिफिक सरफेस रफनेस जो है वो बढ़ जाएगी और उस स्पेसिफिक लोकेशन पर डायमीटर डी जो है वो ग्रेटर देन डाई हो जाएगा। देन हेड लॉस वगैरह में इफेक्ट आएगा। उसके अलावा जो पाइप की करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि पाइप में जो पाइप की जो मतलब फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें चेंजेस होने लगेगा और मेटल्स करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस होने लगेगा। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप एंड corrosion of pipe. So we are discussing about the pH of water. So it can also be measured using the color indicators. Color indicators से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। So color formed is compared with the standard color से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड कलर्स वगैरह जो है उसके लिए बेसिकली हम लोग लिटमस पेपर भी यूज़ करते थे पहले, but right now we are discussing about the color indicator like the methyl orange and the phenolphthalein. We have discussed earlier in alkalinity video about the methyl orange and the phenolphthalein. So basically the phenolphthalein is a basic indicator and methyl orange is an alkaline indicator, acidic indicator. So methyl orange जो है हमारा acidic indicator है। देन उसके अलावा देन व्हाट इज द कलर टॉलरेंस रेंज फॉर दैट? सो द कलर टॉलरेंस रेंज फॉर द pH टॉलरेंस रेंज फॉर दैट इज 2.8 to 4.3 फॉर द एसिडिक इंडिकेटर कॉल्ड द मिथाइल ऑरेंज, एंड कलर जो है वो येलो से रेड में चेंज करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द फिनोप्थिलीन इज देयर। फिनोप्थिलीन का जो pH टॉलरेंस रेंज है वो 8.3 से 10.6 है, एंड कलर इज चेंजेस फ्रॉम द कलरलेस टू द pink. Then we have one relation that a pH plus pOH is equals to 14. या concentration of H plus ions into concentration of OH minus ion is equals to the 10 to the power minus 14. ठीक है। एंड स्टैंडर्ड लिमिट जो है वो स्टैंडर्ड लिमिट जो है pH की एज पर IS 10500 2012 इज 6.5 to 8.5. ओके, सो एक बार रिवाइज करते हैं। pH जो है निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस है, H प्लस जो है दैट इज इन अ मोल पर लीटर। देन उसके अलावा देयर विल बी अ प्रॉब्लम, एसिडिक वाटर कॉजेज द कोरोजन एंड अल्कलाइन वाटर कॉजेज द इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप। इट कैन आल्सो बी यूजिंग मेजर्ड फॉर द कलर इंडिकेटर से मेजर कर सकते हैं। कलर फॉर्म्ड इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कलर से कंपेयर करते हैं। देयर विल बी अ फिनोप्थिलीन एंड अ मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन इज अ बेसिक इंडिकेटर वेयर एज द मिथाइल ऑरेंज इन एन एसिडिक इंडिकेटर। फिनोप्थिलीन changes color from colorless to the pink and a methyl orange changes color from yellow to red. There will be a pH tolerance range for methyl orange is 2.8 to 4.3, where will be a color tolerance range, pH tolerance range for phenolphthalein is 8.3 to 10.6. Then apart from the standard limit of pH is equals to 6.5 to 8.5, whereas the pH into pOH is equals to pH plus pOH is equals to 14 and H plus ions का concentration into the OH minus ion concentration is equals to the 10 to the power minus 14. Basically there will be a pH line है जिसपे on the pH line there will be a 7 pH, that is the neutral. This is the basically the pure water. As we go from the left 7 से left की तरफ जाएंगे, यानी कि अगर 0 की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम द 7 देन द एसिडिटी ऑफ सैंपल विल इंक्रीजेज. इफ ही मूव्स फ्रॉम द 7 टू 14 देन द बेसिसिटी और द अल्कलिनिटी ऑफ द सैंपल इंक्रीजेज. रिलेटिव मोशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 0 टू 14 की तरफ जाएंगे देन द एसिडिटी अल्कलिनिटी ऑफ वाटर विल इंक्रीजेज. एंड इफ 14 टू 0 की तरफ मूव करेंगे देन द acidity of the sample will increase. So basically we have discussed all the concept about the pH of water and how the pH of water is required for the different water treatment units and effectiveness of the sample and during the water treatment unit, like it is also important for the chlorination or the disinfection of water. It is also important from the coagulant characteristic like alum, copra. The effectiveness of all the chemicals used in a water treatment plant is dependent upon the pH of water.
देन इसको समझने के बाद में आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पीएच वी आर मूविंग टुवर्ड्स द after understanding the basic concept of pH we are moving towards the very important topic that is called the hardness of water. So अभी हम लोग आ गए द हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू. सो डेफिनेशन एक बार देखते हैं कि हार्डनेस कैन बी डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायंस इन अ सोल्यूशन. होता क्या है, जो मल्टीवैलेंट कैटायंस हैं लाइक द पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर रहेगा दैट इज द कैटायंस. अब क्या है कि जो कैटायंस रहेगा उसमें जो देयर विल बी इफ कैटायंस में जो चार्जेस है अगर 2 या 2 से मोर है देन दैट इज कॉल्ड द मल्टीवैलेंट कैटायन. सो बेसिकली जो वाटर में कैटायंस प्रेजेंट रहते हैं these are calcium, magnesium and iron, manganese, strontium and aluminium. But basically in a natural water the most abundant जो रहेगा वो calcium and magnesium ही रहता है. ये रहता है but this is in a very small quantity. Okay. So अगर small quantity में है then हमेशा प्रेजेंट रहेगा कि नहीं दैट डिपेंड्स. सो बेसिकली जो हार्डनेस रहती है वाटर में दिस इज बेसिकली फॉर द कैटायंस के केसेस में अगर हम देखें तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कैटायंस जो हैं इनकी वजह से ही हम लोग इन फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज मानते हैं कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर है जो कैटायंस के ऊपर डिपेंड करती है दैट इज बेसिकली द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज बेसिकली द कैटायंस के ऊपर डिपेंड करती है. ये हमारा कैटायंस के ऊपर डिपेंड कर रही है. So right now if we discuss about the anions of water, like ये हमारा कैटायंस के ऊपर डिपेंड था कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रहेगा. देन एनायंस ऑफ वाटर के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं सो बेसिकली जो एनायंस ऑफ वाटर के ऊपर डिस्कशन अगर हम लोग कर लेते हैं उसकी वजह से जो हार्डनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो दैट इज बेसिकली ऑफ द 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज अ कार्बोनेट हार्डनेस and second word is a non-carbonate hardness. So basically what is the carbonate hardness and what is the non-carbonate hardness? If there will be a bicarbonate or the carbonate of calcium and a magnesium will be present in a water, sorry जो कैल्शियम है उसका केवल बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम का कार्बोनेट एज वेल एज बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट है वाटर में देन दैट विल कॉल्ड द कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ वाटर. इट इज मे बी जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के अपार्ट फ्रॉम द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इट कैन फिर द आयरन से भी हो सकता है, स्ट्रॉन्टियम एल्यूमिनियम की वजह से भी हो सकता है, मैग्नीज की वजह से भी हो सकता है. बट वी आर नॉट गोइंग टू मोर इन दैट बिकॉज द मेजर कैटायंस इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन अ वाटर. सो अगर कैल्शियम मैग्नीशियम या किसी भी कैटायंस का मल्टीवैलेंट कैटायंस के अगर कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है वाटर में देन दैट इफ दैट हार्डनेस कॉजेज कर रहे हैं तो दैट हार्डनेस इज कॉल्ड द कार्बोनेट हार्डनेस इन अ वाटर. ओके. और उस अपार्ट फ्रॉम दैट इफ सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है प्रेजेंट इसमें देन दैट उसको कंबाइन करके अगर कैटायंस के साथ वो कंबाइन करता है then that will call the non-carbonate hardness in a water. One more difference between that. The difference क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस जो टेम्परेरी हार्डनेस काज करते हैं, यानी कि जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो जो है बेसिकली द टेम्परेरी हार्डनेस रहेगी, वेयर एज द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज अ परमानेंट हार्डनेस इन अ वाटर. So what do you understand by the temporary hardness and what do you understand by the permanent hardness? So जो temporary hardness रहेगा उसको हम लोगों को अगर if we want to remove the temporary hardness then there will be a certain methods. So for the removal of the temporary hardness basically अगर if we are going for the softening of a water then during the softening of a water it can also be removed the temporary hardness from the water, but it is advantageous to do the boiling of water, but in a large scale it is not advantageous to do the boiling of water.
उसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग, अगर बेसिकली हम लोग रिमूव करना चाहें तो सिंपल जस्ट बॉईल करेंगे वाटर को। लाइक एक पैन ले लिया यहाँ पे, इस पैन में हम लोगों ने मान लीजिए वाटर फिल कर लिया। वाटर फिल करने के बाद में इफ देयर विल बी अ स्प्रिट लैम्प ले करके या किसी भी अगर बर्नर के ऊपर रख के इसको हम लोग अगर फिल कर लें, ठीक है, देन अगर यहाँ पे इवेपोरेशन करा दे वाटर का, इवेपोरेशन करा दे या नहीं, इफ विल नॉट गोइंग टू इवेपोरेट ऑफ वाटर, देन वाटर को जस्ट बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद में जैसे ही हम लोग वाटर को बॉयल करेंगे, देन देयर विल बी अ प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा और MgOH का CaCO3 और MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट होने लगेगा और इसको अगर हम लोग वापस में छान ले देन वो रिमूव हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द कार्बोनेट हार्डनेस की वजह से। बट फॉर द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस वी हैव टू गो फॉर द वेरियस सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग मेथड। These are the lime soda method or the zeolite process, ion exchange method, cation or cation and ion exchange method, base exchange processes. So these are the softening of water technique that will be discussed in a treatment of water section, where we will discuss about the softening of a water before the filtration of water. So that will be discussed there. Okay. Then what are the objections with the hard water? So there will be a certain objections with the hard water. So hard water के साथ objections क्या हैं? ये hard water जो है leads to the lesser foam formation. Okay. सोप के साथ में ये lesser foam formation करता है और higher consumption of soap रहता है। इसका रीजन क्या है? देखिए, देयर विल बी अ strong long chain of carbon ions like the C17, H35, CONA, सोडियम स्टीयरेट वगैरह रहता है, जैसे सोप का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देन जो आपका कार्बन साइड है इन अ वाटर, सोप के जो मॉलिक्यूल उसमें कार्बन साइड है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सोडियम का रेंज है दैट इज बेसिकली द हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो उस केस में क्या रहेगा कि जो आपका सोडियम के अलावा जो चीज़ें हैं जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर था बेसिकली, वो वाटर में से क्या करेगा कि जो हार्डनेस रहेगी, इफ़ देयर विल बी हार्डनेस इन अ वाटर, अगर हार्डनेस ऑफ वाटर है तो उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वो कार्बन का जो पोर्शन है वो उससे जाकर के अटैच हो जाएगा और सोडियम स्टीयरेट की जगह वो कैल्शियम स्टीयरेट बना करके या सम अदर कोई भी ऐसे सब्सटेंस CaCO3 बना करके सब कुछ बना करके उसको रिमूव करके सेटल हो जाएगा और सोडियम को रिमूव कर देगा। उस केस में क्या रहेगा, जो सोडियम या जो सोप का कॉम्बिनेशन था वो डर्ट है या फिर जो गंदगी है वाटर, जो क्लोथ्स वगैरह में से जो डर्ट या उसको जो ऑयल्स वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए यूज होना था, वो पहले एट फर्स्ट हार्डनेस रिमूवल करने लगेगा। जब हार्डनेस को रिमूव करेगा तो कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज वाई द फोम फॉर्मेशन इज मोर एंड फोम फॉर्मेशन इज लेस एंड कंजम्पशन ऑफ सोप इज मोर विद द हार्ड वाटर। ओके, दिस इज बेसिकली ये हाउस होल्ड के लिए है। दिस इज बेसिकली द हाउसेज में ये प्रॉब्लम रहती है। ओके, ये तो हाउस की प्रॉब्लम है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ है, जो फूड जो है वो भी टेस्टलेस काफ़ी फील होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल ऑल्सो अ प्रॉब्लम विद द इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स रहता है। इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स किस तरीके से रहेगा हार्ड वाटर से,
लाइक द हार्ड वाटर में जो साल्ट्स वगैरह रहते हैं, देन साल्ट्स या फिर CaCO3 के जो CaCO प्रेसिपिटेट्स वगैरह रहता है, जब हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं ना बॉयलर्स, अब बेसिकली बॉयलर का यूज़ करते हैं। बॉयलर अगर हम लोग नॉन कोकिंग कोल को लेकर के जाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, विच है द एस कंटेंट नियरली 34 ±0.5% इफ़ यू ट्रेवल द कोल फ्रॉम मोर देन द 500 मीटर्स फ्रॉम द 500 किलोमीटर से ज़्यादा है अगर कोल माइन से, तो उसको अगर हम लोग लेकर के जाते हैं, देन थर्मल पावर प्लांट्स में जाता है। थर्मल पावर प्लांट में देयर विल बी अ कंबस्चन ऑफ कोल, उस कंबस्चन ऑफ कोल को करके बॉयलर्स पे हम लोग हीट देते हैं। इफ देयर विल बी अ बॉयलर्स में अगर हीटिंग कर रहे हैं, एंड इफ देयर विल बी अ वाटर विच हैज बीन टेकन फ्रॉम एनी वाटर सोर्स हैविंग द हार्डनेस मोर देन द परमिसिबल लिमिट, और द अगर उसमें वो हार्डनेस ज़्यादा है, देन बेसिकली जो अगर हार्डनेस ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट्स होगा। प्रेसिपिटेट होने की वजह से स्केलिंग ऑफ बॉयलर होने लगे। स्केलिंग क्या होता है कि जो इनर सरफेस ऑफ बॉयलर्स है वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट या किसी भी चीज़ की प्रेसिपिटेट्स जमा होने लगते हैं। अब क्या होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एफिशिएंसी ऑफ हीट ट्रांसफर इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। रीज़न क्या है उसका, कि जब हम लोग इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग द सम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन कंबस्चन ऑफ कोल किया, देन हम लोगों ने उसके से कुछ हीट निकला, देन दैट हीट को अगर हम लोग बॉयलर्स को देते हैं, देन देयर विल बी अ स्मॉल और सम अमाउंट ऑफ द हीट लॉस विल बी देयर। अब क्या है कि वो जो हीट है वो वाटर को इवेपोरेट करके स्टीम बनाने में यूज़ होने वाली थी, बट देयर विल बी अ इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप, थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा बॉयलर का, इंक्रस्टेशन की वो थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा, स्केलिंग ऑफ अगर रहेगा स्केलिंग हो जाएगा बॉयलर के से, थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा, तो वो पूरी हीट नहीं ट्रांसफ़र हो पाएगी और हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। उसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी रिड्यूस आएगी, जिसका बेसिकली बर्डन जो है हम ही लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर देखने को मिलेगा या मिलता भी है। बाकी हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड मोर अबाउट इन अ पीएच में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इनक्रस्टेशन और कोरोजन ऑफ वाटर देख लिया, पाइप्स देख लिया। अब क्या है, जो मैग्नीशियम हार्डनेस है सल्फेट के यानी कि MgSO4 की अगर जो हार्डनेस है तो लेग्जेटिव इफेक्ट देता है। लेग्जेटिव इफेक्ट क्या होता है, दैट इज बेसिकली द लूज मोशंस की प्रॉब्लम रहती है, एक हेल्थ इफेक्ट है। ओके अब ये तो इससे क्या है, बेसिकली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स दी विच टाइप ऑफ हार्डनेस कॉजेज द लेग्जेटिव इफेक्ट, या किसकी वजह से लेग्जेटिव इफेक्ट रहता है, देन देयर विल बी अ मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से, या सल्फेट हार्डनेस जो है मैग्नीशियम सल्फेट हार्डनेस जो है उसकी वजह से लेग्जेटिव इफेक्ट ऑफ वाटर रहता है। ठीक है, फोम ना होने की वजह से, हार्ड वाटर की वजह से प्रॉब्लम क्या है, दैट इज़ द हायर कंजम्पशन ऑफ सोप जो है हार्ड वाटर की वजह से एक प्रॉब्लम रहता है बेसिकली। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट द क्वेश्चन पूछ सकता है लाइक द टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होता है, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है। बेसिकली ये तो एक सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आना शुरू होते हैं द मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस से। सो जो हार्डनेस का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, सो बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस कैन बी डन विद द टाइट्रेशन मेथड से मेजरमेंट किया जाता है हार्डनेस का। सो टाइट्रेशन किस तरीके से करते हैं, बेसिकली एक ब्यूरेट में हम लोग EDTA ले लेते हैं। EDTA की फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली देख लेना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है गेट में। सो व्हाट इज द इंडिकेटर EDTA की फुल फॉर्म, तो EDTA क्या है, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम लगे देन आई एम पुटिंग दैट, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड बेसिकली। सो एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBT? EBT की फुल फॉर्म क्या है, एरियोकोम ब्लैक टी। ये बेसिकली जो कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे फ्रेम किए जाते हैं।
ओके अब क्या है, इंडिकेटर होता है। अब इंडिकेटर इंडिकेट करने के लिए कुछ कलर उसका इनिशियली रहता है और कुछ कलर वो फॉर्म करता है, ठीक है। तो इंडिकेटर है, मान लीजिए इफ देयर विल बी अ इंडिकेटर, तो उस इंडिकेटर में कुछ खुद का एक इनिशियल कलर रहता है, लाइक द कलर उसका रेड कलर है मान लीजिए, वो रेड कलर से चेंज होता है इन अ ब्लू कलर में। ओके ये ईबीटी इंडिकेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जो ईडीटीए लेते हैं उसकी मोलैरिटी कितनी है, ईडीटीए की मोलैरिटी 0.01 है, ठीक है। तो इस मोलैरिटी एक्चुअली देखिए जो मोलैरिटी है यहाँ पे ऐसे ये मोलैरिटी हो गई 0.01, ठीक है। एल्कलिनिटी में जो है वो मोलैरिटी दूसरी थी, ठीक है। देन देयर विल बी अ 0.0141 का आगे लेकर के चलेंगे, वहाँ पे कुछ अलग नॉर्मेलिटी रहेगी। सो अगर हम लोग जब क्लोराइड कंटेंट मेजरमेंट करते हैं तो 0.0141 नॉर्मेलिटी का AgNO3 लेते हैं, ठीक है। एल्कलिनिटी ऑफ वाटर में हम लोगों ने कुछ और लाइक द N/50 लिया था 0.02 नॉर्मेलिटी का। तो उसको लेने का व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट, कंसेप्ट क्या रहता है कि उसको इस तरीके से सेट करते हैं कि जो 1 ml जब ब्यूरेट से हम लोग ब्यूरेट से जब कोनिकल फ्लास्क में जब टाइट्रेंट को मूव कराते हैं, ठीक है, एंड देयर विल बी एडिशन ऑफ, जब हम लोग इसको मूव कराने के बाद में जब उससे हमारा इंडिकेटर डालते हैं और कलर चेंज जब मेजर करते हैं, तो जितना ml मतलब जितना ml उस ब्यूरेट में रीडिंग फॉल डाउन होगी उतना अमाउंट ऑफ मिलीग्राम हार्डनेस एज CaCO3 देता है। यही बेसिक कंसेप्ट उसमें भी था एल्कलिनिटी में कि जब N/50 नॉर्मेलिटी का जब हम N/50 नॉर्मेलिटी का जब यूज़ कर रहे थे टाइट्रेंट हम लोग उस समय पर, ठीक है। टाइट्रेंट वहाँ पे क्या था हमारा एल्कलिनिटी में H2SO4, जब N/50 नॉर्मेलिटी का H2SO4 यूज़ कर रहे थे कोनिकल फ्लास्क में जब पुट कर रहे थे, देन मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाल रहे थे, देन एट दैट टाइम जो जितना 1 ml जो फॉल कर रहा था, ठीक है, 1 ml फॉल डाउन इन दैट विल बी इन नियरली इक्वल टू द 1 मिलीग्राम ऑफ एल्कलिनिटी HCaCO3 था। उसी कंसेप्ट के ऊपर 0.01 मोलरिटी का EDTA सोल्यूशन जो है उसका कंजम्पशन 1 ml जो है 1 मिलीग्राम ऑफ हार्डनेस HCaCO3 के इक्विवेलेंट है। ओके ये आया कहाँ से, बेसिकली द ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से, बिकॉज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग विल बी द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अदर थिंग, ठीक है। ये वही ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट थे दैट वी हैव डिस्कस्ड इन alkalinity lectures। तो alkalinity if you have to find out about the alkalinity of water, alkalinity वगैरह को समझना है तो उसके इससे हमारा जो प्रीवियस वीडियो है, प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो जिसमें हम लोगों ने alkalinity of water के बारे में बात कर रखा है, alkalinity of water के बारे में बात कर रखा है इन द केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स इटसेल्फ। सो उसको हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ओके देन there will be a formula for the total hardness as CaCO3 if you have to find out the total hardness as CaCO3, ठीक है। तो किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है उसका कंसेप्ट यहां से हम लोग देखते हैं। as we have discussed about the gram equivalent of anything will be the gram equivalent of other thing। so gram equivalent निकालने का कंसेप्ट क्या है, बेसिकली जो अगर हमारा कोई भी एक वेट दे रखा है, ठीक है, सो इक्विवेलेंट वेट निकालने का कंसेप्ट क्या था, सबसे पहले तो जो मॉलिक्यूलर वेट अगर हमको फाइंड करना है तो उसमें इंडिविजुअल एटम्स का कितना एटॉमिक वेट है, उस एटॉमिक वेट का जो टोटल सम होगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट। देन इफ देयर विल बी वन एनी आयंस, अगर कोई आयंस है अब उसके कितनी वैलेंसी है, लाइक यहाँ पे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हैज द 2 वैलेंसी एंड कैल्शियम आल्सो हैज द 2 वैलेंसी बट द सोडियम हैज द 1 वैलेंसी, ठीक है। तो molecular weight upon valency gives the equivalent weight of water, equivalent weight of any substance like the calcium का कुछ और है, magnesium का कुछ और है, like calcium का जो molecular weight है that is atomic weight जो है calcium का वो 40 है but it has the valency of 2, so the equivalent weight of calcium is basically 20। और कैल्शियम कार्बोनेट का अगर देखा जाए तो 100 होगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट बट वैलेंसी 2 है, देन द मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी गिव्स अबाउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये 50 जो है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का
इक्विवेलेंट वेट है बेसिकली, ये इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट कहते हैं 100/2। सो ये तो हो गया इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट। अब ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ ये कितना ग्राम ऑफ सैंपल है इन पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सैंपल। अगर मतलब क्या है कि कितना ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आयंस है पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंसी। सो क्या बेसिकली द ग्राम इक्विवेलेंसी ऑफ एनीथिंग विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। सो बेसिकली अगर हम लोग वो ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात करते हैं, अगर हम मिलीग्राम पर मिली इक्विवेलेंट्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से भी काम चल जाएगा। तो इस तरीके से इफ यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीशियम डबल प्लस है Mg++ मिलीग्राम पर लीटर, इक्विवेलेंट वेट या मिली इक्विवेलेंट वेट्स वगैरह यहाँ से अगर फाइंड आउट कर लें तो यहाँ से क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट है देयर विल बी, तो इक्विवेलेंट क्या है, मिलीग्राम पर मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मिलीग्राम पर मिली इक्विवेलेंट है देयर विल, तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसका जो है 50 से मल्टीप्लाई करके देयर विल बी फाइंड आउट द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से हमको ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाइड बाय द 50 डायरेक्टली हमको जो है दे देगा मिलीग्राम पर लीटर CaCO3 में हार्डनेस, मैग्नीशियम हार्डनेस। एंड द कैल्शियम हार्डनेस के लिए कैल्शियम का कितना कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इनटू 50, दैट विल गिव बी द कैल्शियम हार्डनेस। So basically the summation of the calcium hardness and magnesium hardness का जो summation है प्लस एडिशन है वो हमको देता है that will give you the total hardness of water। ये बेसिक कंसेप्ट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम यहीं से होंगे। लाइक अगर एक सिंपल क्वेश्चन को अगर हम मौजूदा एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं तो लाइक द अगर मैग्नीशियम का इफ देयर विल बी अ मैग्नीशियम हैविंग द 24 मिलीग्राम पर लीटर, देन इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना है, लाइक द 12। सो ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, 24 डिवाइडेड बाय द 12, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। कैल्शियम का अगर इफ विल टॉक अबाउट लाइक द 60 मिलीग्राम पर लीटर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू द 20, तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी देयर। सो बेसिकली 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स फॉर दैट फॉर द मैग्नीशियम एंड 3 ग्राम इक्विवेलेंट फॉर द कैल्शियम। बेसिकली 50 कॉमन है, देन 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस रहेगा बेसिकली, जिसमें 2 मिलीग्राम पर लीटर जो है 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस जो है वो दैट इज द मैग्नीशियम हार्डनेस, एंड 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस विल बी द कैल्शियम हार्डनेस। 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 100 मिलीग्राम पर लीटर CaCO3 विल बी द मैग्नीशियम हार्डनेस एंड 150 मिलीग्राम पर लीटर CaCO3 विल बी द कैल्शियम हार्डनेस, बट द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर विल बी द magnesium hardness as well as the summation of the calcium hardness. Then there will be the 150 plus 100 will be giving you the total hardness of water as the 250 milligram per liter as CaCO3. Okay. अब basically the concept arises why always we are talking about the equivalent as CaCO3. CaCO3 के ही इक्विवेलेंट में क्यों बात करें, बेसिकली जो लाइम सोडा प्रोसेस है किसी प्रोसेस, तो बेसिकली जो स्केलिंग या सेटलमेंट्स होता है या प्रेसिपिटेशन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, और उसको निकालना इक्विवेलेंट लाइक इजी है, लाइक द 50 से मल्टीप्लाई करके उसके रिस्पेक्ट में सारा फाइंड आउट कर लेते हैं या लीच आउट जल्दी हो जाता है। मोस्ट प्रेसिपिटेटेबल फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लाइक द अगर विल टॉक अबाउट द मैग्नीशियम कार्बोनेट के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, सो अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट के बारे में विल टॉक अबाउट द मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो उस केस में क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एक्चुअली सॉल्युबल इन अ वाटर, it is not insoluble in water, so it will never precipitate, but the calcium carbonate will precipitate, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है विच रिक्वायर्स द ट्वाइस ऑफ लाइम का यूज करते हैं, ट्वाइस ऑफ वॉशिंग सोडा यूज करना पड़ता है, तो वहां से फाइंड होता है। इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलवेज द इक्विवेलेंट एज CaCO3। ओके, so we have understood about the total hardness, calcium hardness, magnesium hardness, कैटायंस की वजह से क्या हार्डनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, एनायंस की वजह से क्या हार्डनेस होता है, कैटायंस की हार्डनेस क्या होती है, एनायंस की हार्डनेस क्या होती है, all these we have understood. Right now the concept arises the alkalinity and hardness relationship. So क्या होगा कि जो alkalinity और hardness है वो दोनों मिला के नियरली इक्विवेलेंस रहते हैं एक दूसरे के। सो क्या होगा कि अगर इफ यू हैव टू फाइंड आउट द कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो यहाँ से कुछ एक सम सेट्स ऑफ फार्मूला है, इजीली इसको यूज करके हम लोग गेट में बेसिकली बहुत जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से होगा कि इफ देयर विल बी अ एल्कलिनिटी इन अ वाटर, लाइक पहले तो फार्मूला देख लेते हैं कि कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी, इन दोनों में से टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी में से जो मिनिमम होगा दैट विल गिव यू द कार्बोनेट हार्डनेस. ओके, एंड इफ देयर विल बी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, NaCH का फॉर्मूला क्या है, टोटल हार्डनेस माइनस एल्कलिनिटी. टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी में का जितना डिफरेंस होगा, या वी हैव टॉक अबाउट कि टोटल हार्डनेस इन एक्सेस ऑफ एल्कलिनिटी. टोटल हार्डनेस एल्कलिनिटी से जो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लाइक द टोटल हार्डनेस माइनस एल्कलिनिटी का जो बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज बेसिकली द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस. अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? रीजन बिहाइंड इज दैट जो एल्कलिनिटी वो किसकी वजह से होता था, एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज बेसिकली बाइकार्बोनेट SCO3 माइनस CO3 माइनस एंड OH माइनस. OH माइनस इज जनरली निग्लेक्टेड. OH माइनस को हम लोग निग्लेक्ट करके चलते हैं. रीजन बिहाइंड अगर 10 pH है तब हमारा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो है 5 मिलीग्राम पर लीटर होगी, 12 पे कुछ और ज़्यादा होगी, 13 पे कुछ और, 14 पे कुछ थोड़ा और बढ़ेगी. बट बेसिकली जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं उसका जो pH होगा नियरली 8.5 के आसपास होगा. और अगर 8.5 से ज़्यादा हमारा pH नहीं रखते हैं तो 8.5 पे इट इज़ वेरी वेरी निग्लेजिबल, लाइक समथिंग अमाउंट बहुत कम रहेगा. उसका कितना डिफरेंस है वो आगे क्वेश्चंस में हम लोगों ने शो किया हुआ है. तो OH माइनस को हम लोग जनरली निग्लेक्ट करके चलते हैं. तो है क्या, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इन्हीं दोनों का सम है. तो यही इसीलिए को बोलते हैं कि अगर एल्कलिनिटी कम है या टोटल हार्डनेस ज़्यादा है एल्कलिनिटी से, तो क्या होगा कि जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो आपकी एल्कलिनिटी के बराबर हो जाएगी. ओके, अब क्या है, अगर इसके के कंपेरेबल अगर एल्कलिनिटी ज़्यादा है, एल्कलिनिटी ऑफ वाटर अगर हायर है, तो ऐसा तो है नहीं कि बेसिकली इन्हीं की वजह से केवल एल्कलिनिटी होती है. जनरली एल्कलिनिटी तो और भी एनहांस की वजह से होती है, लाइक द HSI तो 3 माइनस इन सब की वजह से भी एल्कलिनिटी वगैरह रहती है. सो एल्कलिनिटी ऑफ वाटर की वैल्यू अगर ज़्यादा है या अगर सोडियम वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो एल्कलिनिटी ऑफ वाटर की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो उस केस में अगर सोडियम प्रेजेंट है तो जो कार्बोनेट हार्डनेस होगी वो आपका टोटल हार्डनेस के बराबर हो जाएगी. यानी कि एल्कलिनिटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू द टोटल हार्डनेस. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि प्रॉब्लम क्या होगी कि HSI3 माइनस इससे ज़्यादा ही वैल्यू टोटल हार्डनेस की हो जाएगी. तो टोटल हार्डनेस डायरेक्टली रिलेटेड विद द कार्बोनेट हार्डनेस, और इसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ होगी जो कार्बोनेट हार्डनेस के अलावा भी चीज़ों को डिपेंड करेगी. ओके, ये तो कंसेप्ट था. अब इसमें क्या है कि अगर इस फॉर्मूला को लगाएंगे, जो भी वैल्यू मिनिमम रहेगी, टोटल हार्डनेस कैसे निकालेंगे, एल्कलिनिटी कैसे निकालेंगे, वी विल डिस्कस इन कोई क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं एक बार. ठीक है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस अगर ये वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो जितना एक्सेस रहेगा वो तो बेसिकली नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगा. बट इफ दिस वैल्यू इज कम्स आउट टू बी द निगेटिव, तो इसे डायरेक्टली इसको जीरो ले लेंगे. ओके, लाइक कि अगर एल्कलिनिटी हमारा टोटल हार्डनेस से ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस में जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है वो हमारी जीरो हो जाएगी, और टोटल जितनी भी हार्डनेस होगी दैट विल बी द कार्बोनेट हार्डनेस. ओके, वन मोर थिंग अराइजेस, दैट इज द स्यूडो हार्डनेस. अब स्यूडो हार्डनेस क्या है? स्यूडो हार्डनेस इज नॉट बेसिकली द हार्डनेस ऑफ वाटर. होता क्या है कि जब सोडियम प्रेजेंट रहता है वाटर में, लाइक द सी वगैरह का, सी के आसपास का अगर जो वाटर है या ओशियनिक वाटर के आसपास है, वहाँ पे अगर सोडियम क्लोराइड वगैरह ऐसे कोई चीज़ ऐसे प्रेजेंट है तो वो इंटरफेयर करता है नॉर्मल सोप बिहेवियर ऑफ वाटर के साथ में, इंटरफेयर करता है. उसकी वजह से क्या है कि जो सोडियम प्रेजेंट है वो कॉमन आयन की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से एक टाइप्स ऑफ एल्कलिनिटी प्रेजेंट करता है. एक टाइप ऑफ एल्कलिनिटी NaCO3 या Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट की एल्कलिनिटी प्रेजेंट हो जाती है. उसकी वजह से एक हार्डनेस होती नहीं है बट वो एक स्यूडो हार्डनेस होने लगती है. लाइक द
महसूस होती है दैट देयर विल बी अ हार्डनेस ऑफ वाटर, बट एक्चुअली देयर विल नॉट बी द हार्डनेस ऑफ वाटर। सो उसका कैसे अंडरस्टैंड होगा कि लाइक अगर हमारा प्रेजेंट है आपका NaHCO3 या Na2CO3 इन वाटर में, अगर वाटर में ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वाटर में अगर NaHCO3 होगा, ये सब चीज़ प्रेजेंट है, तो क्या होगा, एल्कलिनिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। देख लेते हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो क्या होगा, एल्कलिनिटी ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा कि एल्कलिनिटी ऑफ वाटर जब इंक्रीज हो जाएगा और टोटल हार्डनेस कम रह जाएगी, देन मिनिमम हमको लेना है, तो कार्बोनेट हार्डनेस विल डायरेक्टली विद द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर एंड एल्कलिनिटी इज एज द एक्सेस ऑफ द टोटल हार्डनेस, तो विच इज नॉट बीन द केस। तो ये ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज जो हार्डनेस है वो दैट विल बी द टोटल हार्डनेस से ज़्यादा तो हार्डनेस हो नहीं सकती, बिकॉज द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का समीशन अगर हमारा देखिए, जो कैटायंस और एनायंस जो है लगभग सेम होना चाहिए, तो कैटायंस की वजह से जो हार्डनेस है दैट विल बी द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, बट एक्चुअली जो एल्कलिनिटी की वैल्यू इज मोर देन द टोटल हार्डनेस, तो जब एल्कलिनिटी की वैल्यू विल बी मोर देन द टोटल हार्डनेस विच कैन नॉट बी द केस ऑफ, तो उस केस होगा नहीं, तो बेसिकली जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है उसको जीरो ले लेंगे और टोटल हार्डनेस विल बी डायरेक्टली इक्वलेंट टू द कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ वाटर। यही केस है, अगर NaCO3 Na2CO3 सोडियम एल्कलिनिटी प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा कि कार्बोनेट हार्डनेस विल बी डायरेक्टली द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस विल बी एब्सेंट। कैसे क्या है, बिकॉज वैल्यू ऑफ एल्कलिनिटी इज मोर देन द टोटल हार्डनेस, इन दैट केस देयर विल बी एब्सेंस ऑफ परमानेंट हार्डनेस इन अ वाटर व्हेन देयर इज अ सोडियम एल्कलिनिटी प्रेजेंट। ठीक है, ये केस है। उसी के अपोजिट देखते हैं, अगर ये एब्सेंट है तो एब्सेंट होने की वजह से सोडियम एल्कलिनिटी जो अगर एब्सेंट है तो ये कब एब्सेंट होगा, जब देयर विल बी अ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंस रहेगा। अब क्या है, जब ये एब्सेंट है NaCO3 एब्सेंट है तो एल्कलिनिटी में स्यूडो एल्कलिनिटी होगी नहीं, जब एल्कलिनिटी होगी नहीं देयर विल बी, तो एल्कलिनिटी की वैल्यू फॉल्स बिलो द टोटल हार्डनेस। इफ एल्कलिनिटी हैव लेस देन द टोटल हार्डनेस देन द कार्बोनेट हार्डनेस विल बी द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर एंड total hardness in excess of alkalinity gives you the non-carbonate hardness. So there will be the presence of carbonate hardness as well as the non-carbonate hardness, and the summation of the carbonate hardness and non-carbonate hardness will give you the total hardness of water. Okay, thank you. ये हो गया हमारा ये कंसेप्ट। इसी के बेसिस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या है कि कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, बेसिकली कैटायंस में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, स्ट्रांटियम, मैंगनीज, आयरन, एल्यूमिनियम। एनायंस में HCO3 माइनस, CO3 माइनस माइनस, देन सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ये प्रेजेंट है। अच्छा, डिग्री ऑफ हार्डनेस किस तरीके से मेजरमेंट होता है यहाँ पे, डिग्री ऑफ हार्डनेस को हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि जो लिमिट्स है मिलीग्राम पर लीटर में, डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है, तो अगर 0 से 50 मिलीग्राम पर लीटर है देन दैट विल कॉल्ड द सॉफ्ट वाटर, 56 to 100 है देन देयर विल बी अ स्लाइटली हार्ड वाटर, 101 to 200 then the moderately hard, and if 201 to 500 then the very hard water is there. Okay. परमिसिबल लिमिट्स क्या, हमने अल्कलिनिटी में परमिसिबल लिमिट्स की बात नहीं की थी उस टाइम पे, देख लिए दोनों की परमिसिबल लिमिट जो है एज पर IS 10500 2012 जो है, टोटल हार्डनेस भी जो है 200 मिलीग्राम पर लीटर जो है परमिसिबल है एंड 600 मिलीग्राम पर लीटर कॉस्ट फॉर रिजेक्शन है। ये बेसिकली जब पेंडेमिक वगैरह के केस में लाइक अगर इस समय का जो कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है उस समय में अगर हमको अवेलेबल नहीं है, अगर कंट्री की कंडीशन अच्छी नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट की कॉस्ट नहीं बियर कर पा रहे हैं, इन दैट केस वी कैन यूज द वाटर अप टू द 600 मिलीग्राम पर लीटर HCO3 हैव द टोटल हार्डनेस एंड द एल्कलिनिटी ऑल्सो द 200 एंड 600। तो बेसिकली दीज आर द केसेस। ओके, सो बेसिक कंसेप्ट लेने के बाद में वी हैव टू गो थ्रू द 1 or 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। वी विल डिस्कस अबाउट द 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम द इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये जो है IES में का क्वेश्चन एक आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आया है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो सिविल सर्विसेज में भी IAS में भी पूछे जा चुके हैं, सिविल इंजीनियरिंग के सेक्शंस में बेसिकली। ओके, सो क्वेश्चन को एक बार अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ लेबोरेटरी वाटर क्वालिटी एनालिसिस गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट लाइक द कैल्शियम 70 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम 50 मिलीग्राम पर लीटर, सोडियम 10 मिलीग्राम पर लीटर, बाइकार्बोनेट 300 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट 135 मिलीग्राम पर लीटर,
क्लोराइड 7.5 मिलीग्राम पर लीटर, ये है। सो कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल स्पीसीज एंड ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी। सो ये 5 थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट। अब क्या है, इन सब जगहों से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन बेसिकली फ्रेमिंग का कंसेप्ट किस तरीके से आता है उसको एक बार हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। लाइक इस बार पेपर में NAT आएगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे एंड मल्टीपल सेलेक्ट MSQs भी रहेंगे पेपर में। ये MSQs रहेगा, ये सब रहेगा। तो उस केसेस में क्या है कि NAT में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, MSQs में किस तरीके के क्वेश्चन इस सेक्शन से फ्रेम हो सकते हैं। लाइक कि अगर हमको ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, इस क्वेश्चंस को देने के बाद में इफ़ देयर विल बी टोटल हार्डनेस की वैल्यू भी दे रखी है, कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यूज भी दे रखी है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, अल्कलिनिटी भी सब कुछ दे रखा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें वी हैव टू फाइंड। सो इस बार पेपर में NAT भी आएगा एंड मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी इस बार पूछे जा सकते हैं, पूछे ही जाएंगे बेसिकली अगर उसमें दे दिया है। तो टोटल हार्डनेस मान लीजिए फाइंड आउट करना है, या फाइंड आउट क्या करना है बेसिकली, अगर ऑप्शंस में टोटल हार्डनेस की वैल्यू भी दे रखी है, कार्बोनेट हार्डनेस की दे रखी है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की, अल्कलिनिटी दे रखी है, तो उस केस में क्या होगा, टोटल सारी चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे और बेसिकली देन उसके बाद में हम लोग फाइंड आउट करते चले जाएंगे। और आंसर मोर देन वन आंसर टिक करना होगा तो टिक कर देंगे। देन इस तरीके के क्वेश्चंस को समझने का बेसिक अप्रोच क्या है, डायरेक्ट सॉल्व करने से अच्छा है एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मिली इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी स्पीसीज। सो ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट स्पीसीज का कैसे फाइंड आउट करेंगे, लाइक हमारा क्वांटिटी दे रखा है, लाइक द कैल्शियम 70 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम 50 मिलीग्राम पर लीटर, सोडियम जो है दैट इज सोडियम 10 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। देन बाइकार्बोनेट 300 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट 135 मिलीग्राम पर लीटर एंड क्लोराइड 7.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट सबके डायरेक्टली हम लोग निकाल के यहाँ पे रखते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ईजी चीज़ है, इसमें कुछ इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लाइक द कैल्शियम का 40 होता है, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, मैग्नीशियम का 24.4 होता है तो 12.2 या 12 ही बेसिकली ले लेते हैं। सोडियम का 23 रहता है, 23 के 23 रहेंगे। बाइकार्बोनेट का 61/1 = 61 ही रहेगा। सल्फेट का 96 होता है, 96 डिवाइडेड बाई 2 जो है 48 हो जाएगा। क्लोराइड का 35.5 भी रहता है तो 35.5 ही रहेगा। ओके, अब मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर कैसे फाइंड आउट किया। मिली इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी डिवाइडेड बाई द इक्विवेलेंट वेट, यानी कि 70 डिवाइडेड बाई 20 गिव यू द वैल्यू ऑफ 3.5 बेसिकली। अगर यहाँ से देखें तो 50 डिवाइडेड बाई 12 गिव द 4.1667। तो इस तरीके से डायरेक्टली हमारा मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर्स मिल गए हमको, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर हम लोगों को मिल जाएंगे। लाइक द 3.5 कैल्शियम का है, 4.1667 जो है मैग्नीशियम का है, देन देयर विल बी अ सोडियम का 0.4337। इस तरीके से ये मिली इक्विवेलेंट्स हमको फाइंड आउट डायरेक्टली मिल गए। अब हमको जो ये सारे मिली इक्विवेलेंट्स मिल गए यहाँ से, ठीक है। तो आफ्टर फाइंडिंग आउट द मिली इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने के बाद में अब क्वांटिटी एज CaCO3 हमको निकालना है। तो क्वांटिटी एज CaCO3 निकालने के लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मिली इक्विवेलेंट सबके फाइंड आउट कर, मिली इक्विवेलेंट सबके हमको यहाँ पे फाइंड आउट्स हो गए। सारे मिली इक्विवेलेंट फाइंड आउट होने के बाद में एट फर्स्ट हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को हमको ये आयन डायग्राम बना लेना चाहिए। आयन का जो ये ग्राफ चार्ट है इसको बना लेना चाहिए। तो इसमें क्या है कि कैटायंस को ऊपर रखता है और एनायंस को यहाँ पे नीचे रख देंगे। सो कैटायंस और एनायंस को किस तरीके से पुट करना, लाइक यहाँ पे कैटायंस रहेंगे, यहाँ पे एनायंस पुट कर लेते हैं। कैटायंस में कितना 3.5 जो है आपका सोडियम कैल्शियम का है, ठीक है। देन 4.166 जो है देयर विल बी अ मैग्नीशियम, और 0.41 क्या है, जितना भी अमाउंट था 0.411 सम अमाउंट था वो सोडियम का था। तो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस सोडियम, ये 8.1014 हो गया, दैट इज ए मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कैटायंस हो गया।
एनायंस का 4.91803 आपका बाइकार्बोनेट का हो गया, सल्फेट का समथिंग अमाउंट था, क्लोरीन का था, सबको पुट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हुआ कि अंडरस्टैंड हो गया कि आयन बैलेंस तो नहीं है, मतलब क्या है कि बैलेंसिंग ऑफ आयंस तो नहीं हो पा रहा है। अब अगर आयन बैलेंस नहीं है तो उसको यहाँ से बार ग्राफ में पुट कर लिए, लाइक द कैटायंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एनायंस इन अ वाटर। बेसिकली अब यहाँ से अगर हमको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है तो 3.5 इंटू 50 जो है हमें कैल्शियम हार्डनेस, मैग्नीशियम 4.116 इंटू 50 द मैग्नीशियम हार्डनेस हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली हमको ये सारे के सारे इंटू मल्टीप्लाई करके CaCO3 में सारी स्पेसीज हमको निकल गई। सारी स्पेसीज फाइंड आउट करने के बाद में अब क्या है कि टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, कैल्शियम हार्डनेस एज वेल एज द मैग्नीशियम हार्डनेस। तो कैल्शियम हार्डनेस कितना है 175 एंड मैग्नीशियम है 208.33। तो समीशन ऑफ बोथ विल बी 383.33 एज द CaCO3 विल बी द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। अब एल्कलिनिटी प्रेजेंस किसकी वजह से होगा, सो एल्कलिनिटी ऑफ वाटर विल बी बेसिकली द कार्बोनेट बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन अ वाटर। तो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट की वजह से 4.91803 इंटू 50 245.902, सो 245.902 विल बी देयर। तो एल्कलिनिटी ऑफ वाटर ये 240.902 ही हो जाएगा। अब क्या है कि कार्बोनेट टोटल हार्डनेस निकल गई, कार्बोनेट हार्डनेस निकल गई, सॉरी टोटल हार्डनेस निकल गई, एल्कलिनिटी निकल गई। अब हमको फाइंड आउट करना है कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। सो अब हम लोग सीधे बेसिकली यहाँ पे जाएंगे और ये फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, लाइक फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो कार्बोनेट हार्डनेस है विल बी द टोटल हार्डनेस ऑफ एल्कलिनिटी में से जो मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमम क्या है, एल्कलिनिटी ही मिनिमम है यहाँ पे। तो टोटल हार्ड जो कार्बोनेट हार्डनेस विल बी डायरेक्टली विल बी इक्वल टू द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर, ये एल्कलिनिटी है। ठीक है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या है, इन्होंने का एक्सेस है, इन्होंने का एक्सेस क्या है 383 माइनस 240.902, यही जो है यही आपका नॉन कार्बोनेट हार्डनेस NCH हो जाएगा। ठीक है, ये हमको आंसर यहाँ से बेसिकली मिल गया, मिली इक्विवेलेंट्स यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर जो है 175.208.33 हो गया। ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो कार्बोनेट हार्डनेस एल्कलिनिटी के बराबर हो गया, एल्कलिनिटी जो है वो आपका बाइकार्बोनेट्स की वजह से रहेगा, और जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस विल बी एडिशन ऑफ द टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी में जितना डिफरेंस होगा दैट इज 137.428 मिलीग्राम पर लीटर CaCO3 है, ये दैट इज द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इन अ वाटर। ठीक है, अब क्या है कि इसको अंडरस्टैंड कैसे होगा, ये किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड कर रहेंगे कि देयर विल बी एब्सेंस ऑफ सोडियम एल्कलिनिटी। जो सोडियम है, चूंकि बेसिकली यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है, बेसिकली यहाँ पे सोडियम तो प्रेजेंट है। अब जब सोडियम प्रेजेंट है बट द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज लेस देन द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, और काफ़ी ज़्यादा कम है एल्कलिनिटी टोटल हार्डनेस से, लाइक द 137 लिमिट्स कम है, तो उतने अमाउंट का आपका उतने अमाउंट जो है वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट है। ठीक है, जब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती उतना परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, जो सोडियम एल्कलिनिटी होगी वो डायरेक्टली कन्वर्टेड टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एल्कलिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और बाकी वही इंटरप्रिटेशन रिजल्ट है कि देयर विल द एब्सेंस ऑफ सोडियम एल्कलिनिटी इन अ वाटर as sodium alkalinity was converted into the calcium and magnesium alkalinity। ठीक है, सो ये बेसिक क्वेश्चन था, इसका अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने। एक मोर क्वेश्चन देखते हैं, गेट का प्रीवियस ईयर है, गेट 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी हैं इन मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर में, क्लोराइड की दे रखी है, सल्फेट दे रखा है, कार्बोनेट दे रखा है, बाइकार्बोनेट दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, और pH ऑफ वाटर दे रखा है। सो अगर हमको ये सारा चीज मिल गया, देन हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, देन बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम यहाँ पे है मिली इक्विवेलेंट्स में दे रखा है, इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो that will basically 600 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा, CaCO3 रहेगा। ठीक, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो टू 50, सो बेसिकली इट विल गिव यू द 900
मिलीग्राम्स पर लीटर मिल गया हमको यहाँ से। ओके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अल्कलिनिटी यहाँ से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिया एज पर द CaCO3। ओके, अब जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ने फाइंड आउट कर लिया, देन अब अल्कलिनिटी ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली द अल्कलिनिटी ऑफ वाटर जब फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि कार्बोनेट अल्कलिनिटी फाइंड आउट कर लेंगे और बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो बेसिकली 50 से मल्टीप्लाई करके सारी चीज़ एज पर CaCO3 में निकल जाएगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन मिलीग्राम पर लीटर CaCO3। यहाँ मैंने पहले से टिक कर रखा है बट नहीं करते, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। सो टोटल हार्डनेस क्या होगी, समीशन हो जाएगा इन दोनों का, तो 900 प्लस 600 1500 हो गया आंसर, टिक। अब एल्कलिनिटी प्रेजेंट कैसे निकलेगी, एल्कलिनिटी प्रेजेंट जो है वो कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट, बट यहाँ पे तो pH भी दे रखा है, pH ऑफ वाटर भी हमको दे रखा है। द pH ऑफ वाटर वी हैव गिवन, तो उस केस में क्या होगा, हमको POH हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। POH निकलने के बाद में हमको OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी, और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी अल्कलिनिटी ऑफ वाटर तो देती है। जब अल्कलिनिटी ऑफ वाटर वो भी देगी तो उसका सबका एडिशन जो है वो भी मोर देन द बेसिक अल्कलिनिटी ऑफ कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट की वजह से रहेगा। बट होता क्या है, जब pH हम लोग क्या था, जब एल्कलिनिटी का जब हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था इस तरीके से, तो व्हाट वी हैव इंटरप्रेटेड फ्रॉम देयर, इंटरप्रेट हम लोगों ने क्या किया था कि जब pH 8.3 के आसपास तक पहुंचेगा, एट दैट pH द OH माइनस एल्कलिनिटी विल बी फुल्ली कंज्यूम्ड, ये पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी अप टू pH 8.3। इसी वजह से जब pH डिक्रीज होना शुरू करता है तो एल्कलिनिटी ऑफ OH माइनस डिक्रीज हो जाती है काफी ज्यादा, ठीक है। तो एडिशन होने के बाद में किस तरीके से निकालना है वो एक बार देख लेंगे हम लोग। देन वही ये कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑप्शंस हमको यहाँ पे दे रखे हैं। गेट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एक ये डेटा दे देगा, देन 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, या 2 इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन दे सकते हैं। बेसिकली 2 ही क्वेश्चंस अभी तक जनरली दिए गए। MSQs में क्वेश्चन हो सकता है कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, या MSQs जो है वो 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का दे दे, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका एक बार सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन कैसे, टोटल हार्डनेस जो है 900 प्लस 600 इज इक्वल टू 1500 आ गया मिलीग्राम पर लीटर CaCO3। अब क्या है कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एंड कॉस्टिक अल्कलिनिटी, सो क्या है कि कार्बोनेट अल्कलिनिटी जो है वो कितनी है, 5 × 50 मिलीग्राम पर लीटर, तो 250 मिलीग्राम पर लीटर हो गया ये। बाइकार्बोनेट 30 × 50 इज 1500 मिलीग्राम पर लीटर, बट OH माइनस का ये एडिशनल है। अब OH माइनस कैसे निकालेंगे, ये तो 1750 मिलीग्राम पर लीटर है CaCO3, अल्कलिनिटी निकल गई कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट की। OH माइनस यहाँ नेग्लिजिबल लिख दिया, लेकिन है नेग्लिजिबल कैसे उसको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। pH ऑफ वाटर जो है वो 8.5 है, अब हम लोगों ने pH वाले सिस्टम में देखा था कि pH प्लस POH विल बी कंबाइंडली विल बी द 14, तो उस केस में जो POH होगा विल बी 5.5। अब pH 5.5 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा, 10⁻⁻⁻ 5.5 मोल पर लीटर। 1 मोल ऑफ OH माइनस में कितने ग्राम्स रहते हैं, दैट इज द 17 ग्राम्स। अब 17 ग्राम्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 17 ग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल जाएगा, तो यहां से ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर निकल जाएगा ऑफ OH माइनस। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर में निकल जाएगी। अब इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं CaCO3 के साथ में। CaCO3 के साथ करने से कंपेरेबल कैसे निकलेगा कि जो इतना ग्राम 10⁻⁻5.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ एनीथिंग या OH माइनस जो भी थिंग है वो कितना ग्राम्स ऑफ CaCO3 के बराबर होगा, तो इसको एक CaCO3 के ग्राम इक्विवेलेंट में
50 ग्राम होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से हमको मिला 1.58 पॉइंट इंटू 10 ग्राम पर लीटर या 0.15811 मिलीग्राम पर लीटर है CO3, which is very very negligible as compared to the 250 and 1500. So combinedly that is why OH minus will be neglected. और यहाँ से हम लोग एल्कलिनिटी के कर्व से देखा था कि 8.3 pH पहुँचते पहुँचते जब pH हमारा 8.3 पहुँचेगा तो एट दैट पॉइंट जो फिनोप्थिलीन एल्कलिनिटी रहेगी, यहाँ पे OH माइनस पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा और हाफ ऑफ द CO3 माइनस माइनस भी कंज्यूम हो जाएगा। सो यहाँ से हमको ये पता चल गया, ठीक है। जब हमको ये these two things we have find out, after understanding these two things we have to go about the carbonate hardness and non carbonate hardness. अब जब टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी निकल गया तो टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी में से विच इज द मिनिमम, दैट इज द टोटल हार्डनेस. When there will be a minimum of the total hardness and alkalinity is more than the total hardness, then in that case we can talk about that there will be also the presence of the sodium और the pseudo hardness भी present हो सकती है, ठीक है। तो in that case we can talk about the carbonate hardness is directly equivalent to the total hardness and there will be the absence of the non-carbonate hardness. सो एब्सेंस ऑफ द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की एब्सेंस रहेगी. सो बेसिकली द टोटल हार्डनेस जो है 1500, एल्कलिनिटी 1750, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी जो है कार्बोनेट हार्डनेस दैट इज द 1500 एंड द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस विल बी द 0, ठीक है। तो ये हमको ऑप्शंस यहाँ से मिल गए. इस टाइप के क्वेश्चन किट में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ये है. लगभग एवरी ईयर इसमें का एक क्वेश्चन पूछा जाता ही है एवरी ईयर. और आगे चल के एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर, इनसे क्वेश्चंस अल्टरनेटिवली जनरली आते ही हैं, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं क्लोराइड कंटेंट. तो क्लोराइड जो है वो रिसेंटली पॉल्यूशन, अगर मान लीजिए सीवेज वगैरह से पॉल्यूशन है तो उसकी वजह से जो पॉल्यूशन रहेगा वाटर में या कोई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से उससे पॉल्यूशन रहेगा तो वो जनरली हमको क्लोराइड कंटेंट के बारे में उससे पता चलता है. तो बेसिकली द नेचुरल मिनरल्स डिपॉजिट्स वगैरह एक सोर्स है आपका क्लोराइड कंटेंट का, और एग्रीकल्चरल और द इरिगेशन डिस्चार्ज या रन ऑफ जो है वो एक बेसिक सोर्स है क्लोराइड कंटेंट का इन अ वाटर. प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इन अ हाई क्वांटिटी इंडिकेट्स द पॉल्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू द सीवेज और द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, ठीक है. तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट या सीवेज की वजह से जो पॉल्यूशन रहता है वो भी इससे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है. देन इन दैट केस in that case we can find out the basically the measurement, क्लोराइड कंटेंट का मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं. सो क्लोराइड कंटेंट का जो मेजरमेंट करते हैं, क्लोराइड कंटेंट का जो मेजरमेंट करते हैं वो बेसिकली द मोहर मेथड से करते हैं. मोहर मेथड या अर्जेंटोमेट्रिक मेथड से करते हैं. अब इसमें क्या है, जो टाइट्रेंट यूज करते हैं दैट विल बी द सिल्वर नाइट्रेट ये AgNO3 यूज करते हैं. तो 1 ml ऑफ AgNO3 0.0141 जो है ये 1 मिलीग्राम ऑफ क्लोराइड इन सोल्यूशन है. यहाँ से पता चल गया. इंडिकेटर इसमें हम लोग पोटेशियम क्रोमेट यूज करते हैं K2CrO4. इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सिल्वर आयंस जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट एक्सीडेड एंड इट फॉर्म्स अ रेडियस ब्राउन प्रेसिपिटेट. अब जब इसको हम लोग डालते हैं सिल्वर क्रोमेट को तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा अगर सिल्वर आयंस प्रेजेंट है तो वो रेडिस ब्राउन प्रेसिपिटेट ले लेता है. सो इसमें डायरेक्टली बेसिकली बस इतना ही है कि ये है रेडिस ब्राउन में Ag2CrO4 का लेकर के प्रेसिपिटेट्स वगैरह बना लेगा, ठीक है. ये कंज्यूम हो जाएगा. तो बेसिकली यही जो है जनरल है कि रेडिस ब्राउन प्रेसिपिटेट वगैरह बनाएगा. दीज आर बेसिकली द क्लोराइड कंटेंट. इससे बेसिकली जनरल क्वेश्चन ही पूछेगा लाइक द किस मेथड से निकालते हैं, लाइक द मोर्स मेथड से फाइंड आउट करते हैं, मोर्स मेथड से फाइंड आउट करते हैं और इसको अर्जेंटोमेट्रिक मेथड्स भी बोलते हैं. सिल्वर नाइट्रेट इसमें यूज करते हैं. नॉर्मेलिटी जनरली पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछता है. इंडिकेटर पूछेगा, प्रेसिपिटेट के बारे में जनरली पूछ सकता है. एक जनरल क्वेश्चन इससे 1 मार्क्स के या 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन जनरली इससे आस्क किया जाएगा
क्लोराइड कंटेंट ऑफ वाटर से। अब क्लोराइड कंटेंट की लिमिट्स जो है वो 250 मिलीग्राम पर लीटर है CaCO3, वो 250 मिलीग्राम पर लीटर है, सॉरी CaCO3 नहीं, 250 मिलीग्राम पर लीटर है क्लोराइड कंटेंट की लिमिट, ठीक है। एंड कॉस्ट फॉर रिजेक्शन इज 1000 मिलीग्राम पर लीटर। ये जो है वो IS 10500 2012 के डिपेंडिंग अपॉन द उस स्टैंडर्ड के ऊपर है। सो थैंक यू वेरी मच। Today we have discussed so much about the hardness, pH and a chloride content. Basically what are the different concepts of that. So generally the quality parameters of water जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में अभी हम लोगों ने टोटल हार्डनेस डिस्कस कर लिया था, एल्कलिनिटी डिस्कस कर लिया था। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द हार्डनेस, पीएच एंड क्लोराइड कंटेंट। अब डिस्कस करना है नाइट्रोजन कंटेंट, फॉस्फोरस, फ्लोराइड एंड मेटल्स। तो दीज आर बेसिकली द ये थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं। यहाँ से केवल जनरली थियरी के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो थियरी के क्वेश्चंस इससे आते हैं, 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन जनरली नाइट्रोजन कंटेंट, फॉस्फोरस, फ्लोराइड और मेटल से पूछते हैं। इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी वगैरह के सेक्शंस में अगर चूंकि इन्वायरमेंट के स्पेसिफिक है तो मे बी फॉस्फोरस, लेक फॉस्फोरस मॉडल्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, ठीक है। एंड सीवेज ट्रीटमेंट के केस में हम लोग आगे चल के नाइट्रोजन का रिमूवल, फॉस्फोरस का रिमूवल, उसके ऊपर भी एक आध क्वेश्चन करके देख लेंगे। फ्लोराइड रिमूवल कैसे करते हैं उसके मेथड्स वगैरह देख लेंगे। एक स्पेसिफिक जो है प्रैक्टिकल्स के ऊपर भी अगर टाइम मिला तो देन वी विल मेक सम वीडियोस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिकल, जिसमें हम लोग सारे प्रैक्टिकल्स को एक बार देख लेंगे जल्दी से कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं रिलेटिवली, कौन कौन से टाइटनेस अपने रिलेटिवली यूज़ करते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, क्या कलर है, उसका एक फ्लो चार्ट हम लोग बनाएंगे और उसको शो करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये इन्वायरमेंटल साइंस से इंजीनियरिंग प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करते रहिए गेट 2021 के लिए, ठीक है। वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट को हम लोग पूरा पहले कवर कर लेंगे, देन उसके बाद में अगले सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे। मेरा नाम है इंजीनियर ऋषभ सिंह। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो देन काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ताकि मेरी नई वीडियोस के अपडेट्स आपको जल्दी से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।